Hello students, welcome back to the class. In the last class we discussed regarding ionization enthalpy. Then today we will discuss another energy that is called electron gain enthalpy or electron affinity. Electron affinity, that is EA, electron affinity. In terms of energy, in terms of molar enthalpy change, it will be known as electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy, del EGH. So what happens in case of ionization energy? Now when we try to remove an electron from an isolated gaseous atom in its ground state, we have to spend some energy. आम तो गोटे gaseous atom जो isolate करिकी ता ground state रे गोटे electron remove करू ता valence shell लो, then we have to spend some energy. That energy is known as ionization energy or ionization potential. Then the molar enthalpy change involving the removal of an valence electron from isolated gaseous atom in its ground state is called ionization enthalpy. Then similarly, suppose this is the nucleus, this is the first cell, second cell. Okay, one electron is here. One electron is here which is to be added to the cell. गोटे इलेक्ट्रॉन बाहर अछि जे कि गोटे gaseous atom ता ground state रे थिला बेले सेठी add हो. So when it will be added, कोन हबो ना it will form an anion. माने कर छुआ अछि X gaseous form रे अछि, ताले when it adds to an electron, what will it form? ना X minus anion form. So anion form करे पई कोन दरकार? What is required? ना electron must be added to the valence shell. So एथरे कोन हबो? सेठी कोन होतला जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करतला we have to spend some energy. हम किछ एनर्जी खर्च करियो पड़तला. But on the contrary एठी कोन मिलिबो? Energy will be released. Energy will be released. Okay. So when an electron is added to, what is the term to be used? Gaseous atom in its ground state. Gaseous atom or ion in its ground state. That is called electron affinity or electron gain enthalpy. So first let us define electron affinity. So this is the amount of energy released when an electron is added to gaseous atom or ion in its ground state to form corresponding anion. So it is the amount of energy released when an electron adds to a gaseous atom or ion in its ground state to form corresponding anion. So that is called electron affinity. But as I told you, nowadays mostly we are converting it into molar enthalpy change. We are expressing it in terms of enthalpy change. So that is called electron gain enthalpy. Enthalpy change to we define kariya, that is called electron gain enthalpy. So how to define it? Now write down electron gain enthalpy. The molar enthalpy change, the molar enthalpy change involved when a gaseous atom or ion in its ground state adds one electron गोटे इलेक्ट्रॉन ऐड करे कौन करिवो ना टू फॉर्म the corresponding anion. ताले कॉमन टर्म्स आर रहबो छा gaseous in its ground state. So gaseous atom एटा निहाती रहबो gaseous atom or ion in its ground state. जते बेले गोटे gaseous atom or ion ता ground state रे थिबो सेति जदि हम गोटे इलेक्ट्रॉन ऐड करिवा कोन हबो anion form हबो. So during this process energy will be released or molar enthalpy change will be involved. So this molar enthalpy change is called electron gain enthalpy. So during this process the molar enthalpy change is called electron gain enthalpy, which is expressed as del EGH. So it is called molar enthalpy or
electron gain enthalpy del EgH. So if you know that if it is positive, then energy will be absorbed. If it is negative, energy will be released. Enthalpy formula जानिछो, enthalpy change जदि positive अछि ताले energy will be absorbed, जदि negative अछि energy will be released. Okay, मोर गोटे एग्जांपल नबा छुआ क्लोरीन एटम in its gaseous state. कौन हो गोटे इलेक्ट्रॉन when it is added to an electron, it will form the corresponding chlorine anion, chloride ion. This is chloride ion. ताले एही प्रोसेस रे you know chlorine is having the electronic configuration of 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. So it highly requires an electron to complete its octet. आर गोटे निहाती इलेक्ट्रॉन टा दरकार काहे कि ना से नियरेस्ट इनर गैस जो आर्गन कन्फर्मेशन पाइबो तेणु से कौन करिवो इट विल वेलकम एन इलेक्ट्रॉन बहुत तक दरकार तेणु इट विल स्पेंड सम एनर्जी ताले एही केस रे मन रखिबो छुआ डेल EgH मोलर एंथैल्पी चेंज केते हबो ना -340 किलो जूल पर मोल कहिछि डेल EgH माने इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी यदि नेगेटिव अछि दैट मींस एनर्जी विल बी एमिटेड एनर्जी विल बी रिलीज सो जेहेतु क्लोरीन को निहाती गोटे इलेक्ट्रॉन दरकार इट वेलकम्स द इलेक्ट्रॉन मोस्ट तेणु से कोन करे एनर्जी रिलीज कर सो दिस इज कॉल्ड फास्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड मोस्टली व्हेन वी स्पीक ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब कहू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्टली इट इज फास्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काहे कि ना मन कर आ परे हम आ गोटे इलेक्ट्रॉन ऐड करबा चेष्टा करिवो देन व्हाट विल हैपन ना इट विल रिपेयर बट वंस इट गेन्स वन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स negatively charged तेणु इलेक्ट्रॉन आ गोटे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल सो जेतरा हमें क्लोराइड आयन आ गोटे इलेक्ट्रॉन ऐड करियो चेष्टा करिवो इट विल रिपेल इट तेणु से Cl2- हबो नाही सो मोस्टली व्हेन वी स्पीक ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यू हैव टू फॉलो दैट इट इज द फास्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काहे कि ना सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होय तो पॉजिटिव हे पारे होय तो नेगेटिव हे पारे दैट मींस एनर्जी मे बी एब्जॉर्ब एनर्जी मे बी रिलीज बट मोस्टली एनर्जी is absorbed काहे कि ना we have to work something जदि हम मन करो क्लोराइड आयन संगे गोटे इलेक्ट्रॉन ऐड करियो चेष्टा करबो कोन हो इट इज अ नेगेटिवली चार्ज एंटिटी एटा नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज ताले से कोन हो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करिवो सो रिपल्शन को ओवरकम करिया पई we have to spend some energy that means energy will not be released जब फर्स्ट रे होची सेकंड रे एनर्जी रिलीज हो फॉर एग्जांपल मन करो छ आसीबा ऑक्सीजन केस को O G गैसियस स्टेट रे इलेक्ट्रॉन ऐड करिवो कोन हो O- गैसियस स्टेट हबो एठी डेल EgH केते हबो डेल EgH1 करियो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी हबो -141 किलो जूल पर मोल पुनी जदी एई एनायन में आ गोटे इलेक्ट्रॉन ऐड करिया मतलब O- G प्लस इलेक्ट्रॉन आ गोटे इलेक्ट्रॉन ऐड करिवा तले कोन हबो O2- आउट इलेक्ट्रॉन ऐड करले कोन हबो बर्तन देखो ऑलरेडी O- इज नेगेटिवली चार्ज सेतरे कोन करछु हमें आउट इलेक्ट्रॉन ऐड करछु इलेक्ट्रॉन इज आल्सो नेगेटिवली चार्ज जेमति कहली छुआ रिपल्सन विल बी देयर बिटवीन टू सिमिलरली चार्ज पार्टिकल्स ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव कोन हबो रिपल्सन हबो तेनु ताकू ओवरकम करिके हम जदी से इलेक्ट्रॉन को ऐड करेबो वी हैव टू स्पेंड सम एनर्जी ताले एई केस रे जो इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी हबो ता कोन कहबा छुआ डेल EgH2 सेकंड इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी केते हबो ना प्लस 780 किलो जूल पर मोल कहि दिछि छुआ जदी एंथैल्पी चेंज नेगेटिव ताले जानिबो एनर्जी इज रिलीज्ड जदी एंथैल्पी गेन पॉजिटिव एनर्जी इज एब्जॉर्ब तामे देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो ऑक्सीजन रे गोटे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड हेतला एनर्जी वाज रिलीज्ड बट इन द सेकंड केस एनर्जी इज एब्जॉर्ब सो मोस्टली दिस इज आल्सो आस्क्ड एज अ क्वेश्चन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ oxygen is negative whereas the second electron gain enthalpy of oxygen is positive justify hope you can answer this काहे ना फर्स्ट केस रे it readily adds to an electron जते readily electron जते जे जते वेलकम करिवो से सेते एनर्जी अधिका रिलीज करिवो so it release energy del EgH1 is minus माने एनर्जी इज रिलीज किंतु सेकंड केस रे कोन हला रिपल्सन विल बी देयर ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज
तेणु से रिपल्सन को ओवरकम करिकी जत आमे ताको ऐड करबा इलेक्ट्रॉन टाको वी हैव टू स्पेंड सम एनर्जी सेतले एनर्जी और रिलीज होबनी बरम एब्जॉर्ब हो दरकार पड़ियो तले देखो सेकंड केस रे कोन हेगला इट इज पॉजिटिव दैट मींस दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ऐड सेकंड इलेक्ट्रॉन टू O minus बुझिला छ सो दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी जस्ट ऑपोजिट ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी आयनाइजेशन एंथैल्पी कोन होतला ना इलेक्ट्रॉन टा रिमूव करना को वी हैव टू स्पेंड सम एनर्जी so the molar enthalpy change involving removal of valence electron was ionization enthalpy then in this case what happens now when an electron is added to gaseous atom or ion in its ground state some energy is released which is known as your electron affinity then the molar enthalpy change involving this one is called electron gain enthalpy amon rakhibo normally सब बेले second subsequent electron gain enthalpy गुडा positive काहे कि now once an electron is added this species becomes anion negatively charged तेणु जत आ गुटे नेगेटिव चार्ज को हम सेतरे ऐड करियो चेष्टा करिवो ताले कढ हबो वी हैव टू स्पेंड सम एनर्जी ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट विल डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग योर इलेक्ट्रॉन gain enthalpy so students next we'll discuss factors affecting electron gain enthalpy factors affecting electron gain enthalpy del EgH. So same factors again, size of the atom, nuclear charge, screening effect. Then fourth factor here will be electronic configuration. So these are the four factors. So quickly I am discussing these things because we have discussed a lot in ionization enthalpy. So same process will be here. What is the key? Now when the electron is most welcome by the atom, then energy will be released. जतले इलेक्ट्रॉन टा एटम द्वारा जते स्ट्रांगली पुल होबो न्यूक्लियस द्वारा जते स्ट्रांगली पुल हेक आसीबो अट्रैक्टेड हेक आसीबो सेते अधिक एनर्जी रिलीज होबो सो व्हाट इज द फैक्टर ना लोअर एटॉमिक साइज हायर न्यूक्लियर चार्ज लोअर शिल्डिंग इफेक्ट सो दिस शुड बी द फैक्टर्स सो फर्स्ट फैक्टर इज एटॉमिक साइज सो एटॉमिक साइज बड़ा हेले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कमिबो that means जो इलेक्ट्रॉन टा आसुतो ताको अट्रैक्शन टा कम होई जिवो that means electron gain enthalpy will be less so lower is the atomic size कोन हबो ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अधिका हबो ताले इलेक्ट्रॉन gain enthalpy अधिका हबो lower is the atomic size higher is the electron gain enthalpy there is H हला एटॉमिक साइज जते छोट छोट होई के आसीबो ताले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेते अधिक हबो काहे कि ना कहिछि फाटी दे कि ना न्यूक्लियस जते जोरे अट्रैक्ट करिवो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन टाको आसुथे इलेक्ट्रॉन टाको जते जोरे अट्रैक्ट करिवो मोर विल बी एनर्जी रिलीज तेनु सेते अधिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जोडा एनर्जी रिलीज हबो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तेनु फर्स्ट कंडीशन होछि लोअर शुड बी द एटॉमिक साइज सेकंड होछि न्यूक्लियर चार्ज कहि साची ऑलरेडी व्हाट द की ना न्यूक्लियर चार्ज बा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जते अधिका हबो ताले इलेक्ट्रॉन सेते अधिका एनर्जी रिलीज हबो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेते अधिका हबो सो हायर इज द न्यूक्लियर चार्ज हायर इज द न्यूक्लियर चार्ज कोन हबो हायर विल बी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जते न्यूक्लियर चार्ज अधिका हबो से सेते जोर रे इलेक्ट्रॉन टाको निजाड को पुल करिवो सो दैट मोर विल और हायर विल बी द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन थर्ड वन शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट कौन ना लोअरिंग ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन भितरे इनर सेल इलेक्ट्रॉन जते अधिका हबो स्क्रीनिंग इफेक्ट सेते अधिका हबो दैट मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल बी लेस तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कमिला कोन हबो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कमी जिवो सो हायर इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट माने कोन हायर इज द नंबर ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन भीतर थिबा सेल संख्या जते बडी बडी जिवो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेते कमी कमी जिवो हायर इज द नंबर ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स तमारे कोन हायर विल बी शील्डिंग इफेक्ट बढ़ले कोन हबो लोअर विल बी द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी lower will be the electron gain enthalpy del Eg H
तेणु भितर थिबा इलेक्ट्रॉन संख्या बा इनर सेल संख्या जते बढ़िबो स्क्रीनिंग बा शील्डिंग इफेक्ट सेते बढ़िबो दैट मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल बी लेस so when effective nuclear charge decreases the electron gain enthalpy decreases so these are the main three factors which decides about the general trend तो already कहि सारछि the general trend of ionization enthalpy electron gain enthalpy and electronegativity are same when we move from left to right across the period they increase when we move down the group they decrease तेणु लेफ्ट टू राइट को गले कोन हबो ना ऑल दिस थ्री तीनटा को समान पैटर्न रहबो कोन ना ionization enthalpy electron gain enthalpy and electronegativity their trend is same when we move from left to right across the period ताले कोन हबो ना electron gain enthalpy will increase when we move down the group from top to bottom top ru bottom को आसीबा then what will happen ना electron gain enthalpy will decrease so this is the general trend तो एई तीनटा डिसाइड करंती व्हाट इज द जनरल ट्रेंड फोर्थ वन एक्सेप्शनल केस रे आसीबो छुआ electronic configuration so the atoms with stable electronic configuration जो माने ऑलरेडी स्टेबल है हिचंती से माने कोन हेबे नॉर्मली और डिस्टर्ब हो खोजिबेनी बिकॉज़ दे आर ऑलरेडी स्टेबल so say stability पाइबा पई ही the atoms react with each other so when they are already stable they will not accept an electrons माने accept electron करिवे नहीं so their electron gain enthalpy is almost zero or near zero तो कोन का stable configuration अछि ना the atoms with stable electronic configuration कोन का अछि छुआ कहि सर ऑलरेडी that is atoms with कौन हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स ए दिना होछ स्टेबिलिटी कंडीशन आइदर ऑर्बिटल उटा हाफ फील्ड लेतिबे नहले फुल फील्ड लेतिबे एटम्स विथ हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स एंड आउ सेकंड कंडीशन कोन जे जो मन ऑलरेडी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अछि एंड विथ इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन have almost zero electron gain enthalpy तो मन रखियो छा जो मानकर स्टेबल है ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तीनटा केस स्टेबल होची आइदर दे विल हैव हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहले फुल फील्ड ऑर्बिटल नहले दे विल हैव the stable electronic configuration of inert gases एई तीनटा कंडीशन ले जो मानकर अछि ऑलरेडी से माने आउ इलेक्ट्रॉन नबा पई खोजिबे दे विल नॉट एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन दैट मींस जेता एक्सेप्ट करिवेनी नो एनर्जी विल बी रिलीज तो तार इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी केते हबो ना ऑलमोस्ट जीरो एटा तुमको मन रखियो पड़ियो atoms with stable electronic configuration have zero electron gain enthalpy so these are the four factors which decides the electron gain enthalpy whether it will be increasing or decreasing down the group so first thing that decide करे general trend last one is for exceptional conditions जोटा तुमको last class रे भी कहि सारि चले then periodic trends को आसीबा periodic trend मु कहि दे जाउची दिस इज एन असाइनमेंट periodic trend द कॉस्ट ऑफ द assignment 1 so this is the assignment 1 for you so I am telling about periodic trend when we move from left to right across the period so first one when we move from left to right when we move across the period electron gain enthalpy increases काई बोलुची देखिबा आगे सो लेफ्ट टू राइट को गले कोन होची ना न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग सो कोन कहिची छुआ हायर इज द न्यूक्लियर चार्ज हायर विल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो लेफ्ट टू राइट को तले पीरियड जाउछु न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजिंग सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल इंक्रीज देन एटॉमिक साइज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड डिक्रीजेस एटी कोन फेवर करची ना लोअर इज द एटॉमिक साइज हायर इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो दुईटा जाक फैक्टर कोन ये को करची ना
when you move across the period the electron gain enthalpy increases दुईटा को फैक्टर ताको फेवर करूची एंड जेतला हमें गोटे सेम पीरियड रे अछु no new cell is added so there is no chance of shielding effect it is shielding by screening effect रो कौन सी रोल नहीं because the electrons are being added to the same cell there is no shielding or screening effect तो screening effect रो कौन सी प्रभाव पड़े नहीं कोतरे ना when you move across the period आबे तो period लेफ्ट टू राइट जो screening effect रो कौन सी effect impact नाही काहे की ना इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम सेल समान सेल तो एड होंती तेनु थर्ड फैक्टर जोटा स्क्रीनिंग इफेक्ट रो कोनसी इंपैक्ट नाही तेनु फर्स्ट दुटा फैक्टर देखो फेवर करछि कोन इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काहे की ना तर लेफ्ट टू राइट कहउछु पीरियड रे एटॉमिक साइज डिक्रीज करछि एटॉमिक साइज जते कम हबो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेते अधिक हबो कइसे चलडी लोअर इज द एटॉमिक साइज हायर इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड जेतला हम लेफ्ट टू राइट पीरियड को जाउछु प्रत्येक केस रे कोन होछि न्यूक्लियर चार्ज गोटे गोटे इंक्रीज करछि काहे की ना वन इलेक्ट्रॉन इज बीइंग एडेड एंड एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय वन यूनिट एटॉमिक नंबर बढ़ुछि माने कोन करछि प्रोटॉन संख्या बढ़ुछि सो जेतला लेफ्ट टू राइट जाउछि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इंक्रीजिंग दैट मींस न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजिंग सो कोन कहिछि छुआ हायर इज द न्यूक्लियर चार्ज हायर विल बी द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तेनो दुईटा का फैक्टर फेवर करछि कोन ना व्हेन यू मूव अक्रॉस द पीरियड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस बोलला को सुन लो सो कीप इट इन माइंड एंड write down the answer and send it to me then second trend देखिबा छुआ when we go down the group और अब छुआ electron gain enthalpy decreases electron gain enthalpy कमी कमी जीवो okay so why again let us compare the three factors कोइची first three factors will decide the general trend तेनु when you move down the group कोन होछा atomic size increase करछि atomic size increase means lower will be electron enthalpy तो मतलब हम ग्रुप रे तळु तळु जाउछु electron enthalpy कमिवो ड्यू टू increase in atomic size so first factor ला atomic size increases काहे ना प्रत्येक केस रे गोटे नुवा सेल ऐड होछि in every step when you move down the group one new cell is being added तेनु atomic size बढ़ुछि हम जानिछु त trend already we have discussed the trend of atomic size when you move down the group atomic size increases तेनु कोन होछि एटॉमिक साइज बढ़ले कोन हबो ना एटॉमिक साइज बढ़ले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी लोअर हायर इज द एटॉमिक साइज लोअर विल बी द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड क्वेश्चन तोल को आसले छ न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज सो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करले कोन हबो ना द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड इंक्रीज तेनु सेकंड फैक्टर ता रहउछि का फेवर रे ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़िया फेवर सो व्हेन न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आल्सो इंक्रीजेस तेनु सेकंड फैक्टर अनुसार इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़िया दरकार फर्स्ट फैक्टर अनुसार इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कमिया दरकार बर्तमान डिसाइसिव फैक्टर हे गला स्क्रीनिंग इफेक्ट हमें जतरे तळ को आछु ग्रुप रे कोन होची वन न्यू सेल इज बीइंग एडेड तो नुवा सेल लेथिबा जतरे ऐड हे होची भीतर सेल लेथिबा इलेक्ट्रॉन कोन करचंती दे शील्ड और स्क्रीन द न्यूक्लियर चार्ज तो न्यूक्लियर चार्ज जोटा बाहर को मिलुची इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम जा कहूछु सो द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जतरे डिक्रीज करची कोन हबो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करिवो so first factor अनुसार कोन होची इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी will decrease second answer will increase third answer will decrease so these two that means increase in atomic size and screening effect outweighs the increase in nuclear charge ए दुई जन मिसी की कोन करिवे ना आपको आउटवे कर देबे ओवरकम कर देबे ताले फाइनली कोन हबो ना फाइनली हबो when the move down the group electron gain enthalpy decreases okay so these are the answers how we have to justify the trends so this is the assignment बुझे देले छुआ डिटेल्स आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन डिटेल्स सो राइट डाउन द कॉजेस ऑफ दिस पीरियडिक ट्रेंड्स मु जेमति बुझेति लास्ट क्लास छुआ यू हैव टू नोट डाउन मु ऑलरेडी बुझे देली जस्ट सिंपली हैव टू राइट डाउन व्हाई द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड एंड व्हाई इट डिक्रीजेस व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप देन असाइनमेंट 2 So today we shall देखिबा fluorine और chlorine they are present in group 17 में अछथि समाने they are called halogens so when we move down the group in group 17 त तळगु को जीवा कोन हबो तळगु गळे कोन होची इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होची तामे जनरल ट्रेंड अनुसार कार कम आता क्लोरीन शुड हैव लोअर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होवा दरकार देन फ्लोरीन but it is the reverse one, it is the exception and it was asked in the last examination also so what is the question 2 the
electron gain enthalpy of chlorine is higher than that of fluorine against periodic trend. Periodic trend कौची उल्टा हवा कथा against the periodic trend. Justify कहीं कौची justify करो. बुझे ना क्वेश्चन टा. So if you move down to the periodic trend, आमे तले ग्रुप रे तळु तळु जाउची कोन होउची इलेक्ट्रॉन gain enthalpy decrease होउची. ता माने fluorine should have higher electron gain enthalpy, chlorine should have lower electron gain enthalpy. किंतु उल्टाटा होउची chlorine नो electron gain enthalpy is higher than that of fluorine. You have to justify. So I am explaining the answer shortly. You remember it and try to send it to me as the answer. Okay. So first factor is the charge radius ratio. So first factor is charge radius ratio. So fluorine is the smallest atom. जब हमें trend अनुसार देखिए fluorine is the smallest atom, but as compared to its radius, its charge is very high. So if we go for charge radius ratio, that means charge divided by radius, then it is very high. Kaiki na fluorine no atomic size also the smallest one, but accordingly the charge is very high. So it is having a high charge radius ratio. तेणु जो इलेक्ट्रॉन एड करने when an electron is being added ताने कौन होची there is strong repulsion होची सेले इलेक्ट्रॉन gain enthalpy कौन होची ना decreases. Repulsion है कौन होबो, we have to overcome the repulsion, we have to do some work. So repulsion, due to repulsion between the small fluorine atom and electrons due to high charge radius ratio. This is the first point, high charge radius ratio of fluorine. Size रे बहुत छोटो, accordingly charge बहुत अधिक. तेणु charge by radius, that is charge radius ratio बहुत high. सेही पई कोन हबो incoming electron जोटा add हेले fluoride ion होता ताको से repel करिवो. That means electron gain enthalpy will decrease. Second thing, if we write the electronic configuration, fluorine कौन हबो atomic number 9, 1s2 2s2 2p5. तारे fluorine केस रे कौन हबो the electron will be added to small 2p orbital. But यदि chlorine को आसीबा configuration कौन ना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. chlorine केस रे होची कौन ना large 2p और 3p को जदि कंपेयर करबा which is larger in size ना 3p कहिची n value जते बढ़िबो orbital रो size जते बढ़िबो. So fluorine case रे electron is to be added to a relatively smaller 2p orbital, whereas in case of chlorine it is being added to a relatively larger 3p orbital. तेणु 3p orbital जेहेतु size रे large सेठी repulsion टिके कम होबो. So repulsion will be less, that means electron gain enthalpy will be high. So these are the two causes why the electron gain enthalpy of fluorine is less than that of chlorine. Hope you have understood these things. So you try to solve these questions. Assignment 1, justify the periodic trend of electron gain enthalpy, why it increases across the period and decreases down the group. Second one, why the electron gain enthalpy of chlorine is higher than that of fluorine against the periodic trend. Periodic trend answer ulta hava katha, but ulta ta kahi ki hochi. So I have already told you the answer. So hope you follow it and solve it and send it the answer to me. So students, this is for today. See you in the next class when we will discuss electronegativity.